Good morning, class second, and our one chapter is completed of English literature. So from today, we will start English grammar. And so, do you know what are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z? What are these called? Do you know? Yes, these are called letters or alphabet. Okay, so our first chapter is the alphabet, which is our first chapter, the alphabet. Okay, so first chapter, the alphabet, the alpha, ALPHABET, alphabet, ALPHATED, alphabet. So first step or first activity which you have to do here is that, okay, can you see it? First of all, A number, fill in the blanks to make a complete set of capital and small letters. You have to make a complete set of capital and small letters that you have learned before in your previous class or in your LKG, UKG. Yes, first class. Okay, that how this is written. Okay, take a screenshot of this, and it's a homework. Write A, B, C, D in your capital form and in your small form. Capital form as well as small form. Okay, that is how this is written. If you want, you can take the screenshot of this. Okay, A, then dash B. Capital B will come here. C, D. Small d will come here. Small e will come here. F, G, H, I, J, K, L, okay. M, N, O, P, Q, R, small r, okay. S, capital S is there, small s you have to write. T, U, V, W, capital W is there, small w you have to write. X, capital X is there, small x you have to write. Y, capital Y is there, small y you have to write. And Z, capital Z is there, small z you have to write. Okay, so alphabetical order: ALPHABETICAL, alphabetical order, ORDER. Do one thing, take your notebook and start writing the order, ORDER, order in which WHICH, which the letters LETTERS, letters of the alphabet ALPHABET, alphabet appear APPEAR, appear is called CALLED, called the order ORDER, order of the alphabet ALPHABET, alphabet or alphabetical ALPHABETICAL, alphabetical order, ORDER, ALPHABETICAL, alphabetical order, ORDER. Alphabetical order: the order in which the letters of the alphabet appear is called the order of the alphabet or alphabetical order. Okay, so look here, can you see this column? Yes,
this column. Can you see it? Yes. What it is written in this? There are 26 letters in the English alphabet. They are written as both capital letter and small letters. So in this column you can see that it's written that there are 26 letters in the English alphabet. Okay, in English alphabet there are 26 alphabet, and these alphabets can be written both capital as well as small letter. Okay, so learn this. How many alphabets are there? Alright, so there are 26 letters in the English alphabet. There, please write down and learn it. There, THERE, there are ARER 26 letters, 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 in the the English 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 alphabet, ALPHABET alphabet, full stop. They, THEY, they are ARER, written WRITTEN, written WRITTEN, written ASS, both, 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 capital CAPITAL, capital letters, 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 and and small SMALL, small letters, LETTERS, letters. So as I have told you before that there are 26 letters in English that can be written in English alphabet. Okay, and they can be written both capital as well as small. So your very first point is when WHEN, when words WORDS, words are ARER, arranged, 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 in alphabetical, ALPHABETICAL, alphabetical order, ORDER, they, THEY, they are ARER, arranged, 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 in the, the, same, 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 order, 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 ASS, the, the, letters, 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 of, the, the, alphabet, ALPHABET, alphabet. So when words are arranged in alphabetical order, okay, when we arrange the words in alphabetical order, they are arranged in the same order as the letters of the alphabet. Then they are arranged as the same order as they are arranged in the alphabet. That means we will understand this by an example. If it's written, it's so simple, like you can have an example. Okay, wait. Okay, so from what is written in this line, it means that suppose I will teach you this by an example. I have written here dog, cat, and bat. Okay, I have written 4 here, right? 4 words. So which will be the smallest one? Obviously A, because it's the first alphabet, right? A, then B, then C, and then D. Okay, 4th number. Yes? Okay. Yes? We will do further things in this, but later on.
Next line is, or the next point is, to arrange, to arrange, ARRANGE, arrange words, WORDS, words in alphabetical, ALPHABETICL, alphabetical order, 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 WEV, look, 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 at, the, the, first, 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 letters, LETTERS, letters of the words, the words, WORDS, words. To arrange words in alphabetical order, we look at the first letter of the word. That means to arrange the words in alphabetical order, what we have to do, we have to look at the first letter or the first alphabet of the word. As I have told you before in this example, that it's written dog, cat and bat. So if you write ABCD, can you see this? Sorry, yes, this ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Can you see this? Yes. So in this, A is written here. A will be your first number, B second number, C third number, D fourth number, E fifth number, F sixth number, G seventh number, H eighth number, I ninth number, J 10th number, K 11th, L 12th, M 13th, N 14th, O 15th, P 16th number, Q 17th, R 18th, S 19th, T 20th, U 21, V 22, W 23rd, X 24th, Y 25th and Z 26th. That means that there are total 26 alphabet that I've told you before, and if we have to just number them. Okay, so according to this number, if I will write here, again I will give you example of something. So your example is cow, bird, horse, elephant. So what do you think is the smallest one? A is there? No, A is not there. Then we will look for B. B is there? Yes, B is there. Okay, then this will be your first number. C, then we will look for C. Yes, C is also there. Then this will be your second number. D, no, D is not there. E, yes, E is here. E will be your third number. Then E, F, G, H. H is there. Then H will be your fourth number, because H is in the 8th number, so it will come in your last. If suppose zebra, ZEBRA, zebra was there, and tiger, TIGER, tiger was there, then Z will come at last. Why? Because it is starting from Z. That is your 26th number. Then this will be your 5th number. And tiger is T is here in 20th number, so this will be your 4th number. Okay, a small example. So what you have to do is look at these words. Okay, now there is an example given. Look at these words: dog, bat, cap, apple. Okay, in alphabetical order, look, 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 at, these, THESE, these words, WORDS, words. Dog, 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 bat, BAT, bat,
cap, C-A-P, cap, apple, A-P-P-L-E, apple. Now, in alphabetical order, these words will appear as N-I-N-N, A-L, P-H-A, B-E, T-I-C-A-L, alphabetical order, O-R-D-E-R order. These, T-H-E-S-E, these words, W-O-R-D-S, words will, W-I-L-L, will appear, A-P-P-E-R, appear as, A-S-S. Means now we have to write these words in alphabetical order. Okay, these words we have to write in alphabetical order. So what we will do? Alright, so which is your smallest number? If you will look in this paper according to this chart, it's okay, A smallest. Okay, can you see it? A, apple, another one is B, then C, then D. Okay, this is very easy, I think. A, B, C, D, it's yes, yeah, can you see it? Apple, A-P-P-L-E, apple, bat, B-A-T, bat, cap, C-A-P, cap, dog, D-O-G, dog. Now, next page, sorry, D number. Number the words in alphabetical order by writing 1, 2, 3, 4. Look at the first letter of the words. Okay. Number, N-U-M-B-E-R, number. These, T-H-E-S-E, these words, W-O-R-D-S, words. N-I-N-N, alpha, A-L-P-H-A-B-E, T-I-C-L, alphabetical order, O-R-D-E-R, order, by, B-Y, by, writing W-R-I-T-I-N-G, writing 1, 2, 3 and N-D, and 4. Look, L-W-K, look at, A-T, at, the, T-H, the, first, F-I-R-S-T, first, letters, L-E-T-T-E-R-S, letters of, O-F, of, the, T-H, the, words, W-R-D-S. Now, in this, what we have to do? We have to write, number these words. Means we have to number these words in alphabetical order by writing 1, 2, 3 and 4. Okay, so we have to look at the first alphabet. Okay, zebra, giraffe, doll, egg. So what is the smallest? Obviously E. Okay, no, sorry, doll, because it's start from D number na, so A, count like this, A, B, C, D. So D will be your first number. After D, what will come? Can you look in this? After D, E will come. So E is here. Then giraffe, G number, and as you know that zebra will come in your last. If, if, the, T-H-E, the, first, F-I-R-S-T, first, letter, L-E-T-T-E-R-S, letters, of, O-F, of, all, A-L-L, all, the, T-H-E, the, words, W-O-R-D-S, words, R, A-R-E-R, the, T-H-E, the, same, S-A-M-E, same, V, W-E-V, look, L-W-K, look at, A-T, at, the, T-H-E, the, second, S-E-C-O-N-D, second, letters, L-E-T-T-E-R-S, letters of, O-F, of, the, T-H-E, the, words, W-O-R-D-S. Alright, if the first letter of all the words are the same, we look at the second letter of the words. So what is mean? Till now we have learned that if all the we have to write it in the alphabetical order, like A, B, C, D, okay, E, F, and so on. If alright, now what happens if all the letters are same? Suppose, for example, I will give you an example. Okay,
I write here and give you. Suppose, yes, can you look in this example? What is written? Star, sit, sat, and so. So S is here, again S, then again S, then again S. If this is there, then we will look for the second alphabet, that is T, I, A, O. So if we will look in the table, then the first one is this set will come here, that is in the first number. Then T, I, okay, let's see, where is T? T is in the 20th number, right? Okay, and I is in the 9th number, O is in the 15th number. So here it will come sit, S-I-T, okay? And your third number is T or O. Let's see, O is in your 15th number, T is in your 20th number. So here it will come soap, S-O-A-P, and at last star. So if all the letters, all the first alphabets are same, then we will look for the second alphabet. Is it clear? Yes? Alright. Now look here. Let us, L-E-T, let us, U-S, us, look, L-O-O-K, look, at, E-T, at, some, S-O-M-E, some, more, M-O-R-E, more, words, W-O-R-D-S, words, bin, B-I-N, bin, bat, B-A-T, bat, boy, B-O-Y, boy, bed, B-E-D, bed. So in alphabetical orders, these words will appear as in, I-N, alphabetical, A-L, P-H-A, B-E-T-I-C-A-L, alphabetical order, O-R-D-R, order, these, T-H-E-S-E, these words, W-O-R-D-S, words will, W-I-L-L, will appear, A-P-P-E-A-R, appear as A-S-S. Now these words should be written in your alphabetical order. So I, second word we will see, okay, I, A, O, E. So it will come A1, that is bat, then bed, then bin, then boy. Alright, bat, bed, bin, boy. Okay, we will now the next one. Okay, number, N-U-M-B-A-R, number, the, T-H, the, words, W-O-R-D-S, words, given, G-I-V-E-N, given, N-I-N, each, E-A-C-H, each, set, S-E-T, set, according, A-C-C-O-R-D-I-N-G, according, to, T-O-2, alpha, A-L-P-H-A-B-E-T-I-C-A-L, alphabetical order, O-R-D-A-R, order, look, L-O-O-K, look, at, A-T, at, the, T-H, the, second, S-E-C-O-N-D, second, letter, L-E-T-T-E-R, letter, of, O-F, of, the, T-H, the, words, W-O-R-D-S, words. Number the words given in each set according to alphabetical order. Look at the second letter of the words. Now what we have to do? We have to write it in the alphabetical order, like 1, 2, 3, 4. And what else we have to do? We have to look at the second letter. Okay, first one is done for you, like hen, hot, hut, hill, H-E-N, hen, H-E-T, hat, hut, H-U-T, hut,
hill, Hill. So it's so easy. A, we have to look at the second alphabet, not the first, because first alphabet they have already given us the same. So hen, 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 that will come in your second alphabet. Okay. Hen, hen, Hat. A is there na? A is your first. Why? Because it is the smallest. Then your E, then I, and then U number. Okay. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। तो आपकी बुक का नाम है आराध्या व्याकरण कक्षा 2, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिखा गया है भाग 2। ओके। तो आज आपका पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। क्या है बच्चों? भाषा और व्याकरण। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आपको या पढ़ाएंगे अक्षरों के ऐसे मेल से जिनका कुछ अर्थ हो शब्द बनते हैं। अक्षर क्या होते हैं? आपने जैसे नर्सरी क्लास में 1 क्लास में पढ़ा है ना, वर्णमाला। वर्णमाला में छोटा आ से लेकर के ज्ञानी तक के अक्षर होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर। तो वर्णों के मेल से भी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षरों के ऐसे मेल से जिनका। तो देखिए बेटा, शब्द किसे कहते हैं? यह शब्द बनते हैं जहाँ कहा गया है यहाँ पर। तो शब्द जो होते हैं लिखा है यहाँ पर, जैसे देश, धर्म, सेवा, हमारा, माता पिता, पुस्तक, भगवान आदि। तो यहाँ पर कैसे बने हैं ये सब? वर्णों को जोड़कर, मतलब 2 वर्ण है यहाँ पर, एक दा है एक शा है। तो इन वर्णों को जोड़ करके लिख दिया गया है और एक ही मात्रा लगा दी गई तो देश बन गया। इसी प्रकार सभी शब्दों को लिखा गया है। वर्णों को जोड़कर 2 वर्ण हो या 3 वर्ण हो, सभी वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार आगे आपका दिया हुआ है शब्दों के ऐसे समूह से जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो अब शब्द क्या है? शब्द अभी देखिए हमने आपको समझाया यहाँ पर, देश, धर्म। तो इन्हीं से हम वाक्य भी बना सकते हैं कि देश की सेवा करना हमारा धर्म है। तो इसी प्रकार आगे भी यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है, देश की सेवा करना हमारा धर्म है। ये इन्हीं शब्दों को ले लिया गया है यहाँ पर अलग अलग करके और उनको जोड़ करके लिख दिया गया। तो यहाँ पर लिखा है देश की सेवा करना हमारा धर्म है। तो शब्दों से क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो इसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आगे की लाइन देखेंगे, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें भाषा कहलाता है। तो अब विचार देखिए बेटा क्या होता है? हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं और दूसरों के सामने उसको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जो भी हम मुंह से बोलें वो सभी क्या है? हमारी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, या यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा कहलाता है। ओके। तो सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक का अर्थ क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले। जैसे का माला कह दिया जाए कमल, तो कमल मीन्स होता है फूल। लेकिन अगर ला का मा लकम कह दिया जाए तो लकम मीन्स तो कुछ होता ही नहीं। तो कमल जो है सार्थक शब्द है। तो इसलिए सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें, मतलब हमारे मन की बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या वह चीज़ क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ओके। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। तो आज हमें आपको इन चित्रों के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले देखिए इस चित्र में क्या दिया हुआ है? ये कौन है? गुरुजी। गुरु का अर्थ होता है टीचर, अध्यापक। और ये सभी लोग कौन बैठे हैं? छात्र। जैसे कि आप सब लोग हैं, या क्लास में जैसे बच्चे सब लोग बैठे रहते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? छात्र। नीचे लिखा है, बच्चों आज मैं तुम्हें शिक्षा का महत्व बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा? बताऊंगा का अर्थ बोल करके किसी बात को समझाना।
जिस प्रकार हम आपको अभी बोल कर समझा रहे हैं या कक्षा में हम आपको बोल करके कोई चीज़ बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, उसके द्वारा हम आपको कोई चीज़ समझाते हैं, तो वह कौन सी भाषा हो जाती है? मौखिक भाषा। तो इस चित्र में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे वाले चित्र में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टीचर जो है, जैसे कि हम पढ़ाते हैं क्लास में, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक टीचर दी हुई है और वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में लिख रही हैं कुछ। तो उसको टीचर ने बच्चों को समझाया हुआ है, अध्यापिका श्याम पट पर लिख कर समझा रही है। तो लिख कर का अर्थ है लिखित भाषा। लिख कर का क्या अर्थ होता है? लिखित भाषा। जो भाषा हम लिख कर के बताएं बच्चों को, जैसे हम आपको पाठ का नाम बताते हैं कक्षा में, डेट डालते हैं, सभी चीज़ें डालकर समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग हो रही है? लिखित भाषा। अब आगे वाले चित्र में हम तीसरे वाले चित्र में देखेंगे बच्चों, एक बच्चा जो है यहाँ पर आपके कंप्यूटर जिसको कहा जाए स्क्रीन पे कुछ चीज़ पढ़ रहा है। तो नीचे क्या लिखा है कि देखिए क्या कर रहा है वो? रोहन अपने पापा से बात कर रहा है। लेकिन कहाँ से बात कर रहा है? आप ये भी जरा देखिए, जरा लिखी हुई भाषा को पढ़ कर के ही बात कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखित भाषा कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? लिखित भाषा, क्योंकि वो लिखी हुई भाषा को ही पढ़ करके उसका जवाब देगा। तो जब वो जवाब जो बच्चा देगा उसको हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। लेकिन अगर वो भी लिख करके वो जवाब देता है तो भी हम उसको लिखित भाषा कह देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम जो बच्चा बोलेगा तो उसे मौखिक भाषा बोलेंगे, अगर वो लिखता है तो उसे लिखित भाषा बोलेंगे। ओके, तो हमारी यहाँ पर दोनों प्रकार की भाषाओं का यूज हो रहा है। तो आगे देखेंगे, आगे वाले चित्र में देखेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दो फ्रेंड हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? भाई आज हम कहाँ जाएंगे? तो इस लड़की ने, मतलब इस छात्रा ने या इस छात्र ने एक दूसरे से बातें की कि आज हम कहाँ जाएंगे। जैसे हम सुबह अपने भाई बहनों से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो, तो कौन सी भाषा हो जाती है? वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं हम। मम्मी से सुबह गुड मॉर्निंग बोल कर आते हैं स्कूल, वो भी आपकी मौखिक भाषा होती है। ओके, तो देखिए बच्चों, एक बार हम आपको फिर से इस चैप्टर को समझाना चाहते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पाठ का नाम क्या है आपका? भाषा और व्याकरण। तो अभी हम यहाँ व्याकरण को नहीं समझा रहे आपको, केवल हम भाषा के बारे में बता रहे हैं। व्याकरण हम अभी आपको अगले पेज में बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि भाषा क्या होती है और भाषा को क्या कहते हैं या भाषा किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ है, अक्षरों के ऐसे मेल से जिसका कुछ अर्थ हो शब्द बनते हैं। शब्द देखिए, हमने बताया कि वर्णों को जोड़ जोड़ कर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे शब्द कहते हैं। आगे दिया हुआ है वो शब्दों के ऐसे समूह से जिसका कुछ अर्थ हो वो वाक्य बनते हैं। उनसे क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे देश की सेवा करना हमारा धर्म है, मतलब कई सारे शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया है जिससे एक वाक्य बन गया। आगे नीचे लाइन में देखेंगे, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें भाषा कहलाता है। तो अभी हमने आपको पहले क्या बताया कि जो बात हमारे मन में आती है उसको हम दूसरों को समझाना चाहें, बताना चाहें, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और उसको हम अपनी भाषा में प्रयोग करके बच्चों को बताते हैं, या मम्मी पापा हमको समझाते हैं, वो भी उनके विचार प्रकट करना हो जाता है, वही हमारे लिए भाषा कहलाती है। तो हम भाषा कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले तो हम अपने घर से ही भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो जिस प्रकार हमारे क्लास में गुरुजी हैं या टीचर जिनको कहा जाए, तो वो हमको समझाते हैं कि हमको शिक्षा का क्या महत्व होता है, मतलब शिक्षा करते एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ये बताया गया है। तो इस भाषा को क्या कहा गया है यहाँ पर? मौखिक भाषा, क्योंकि ये बोल करके दूसरे को बताई जा रही है। टीचर जो है अपनी मन की बातों को बच्चों तक पहुँचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बोल करके बता रहे हैं कि मौखिक शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये अध्यापिका हैं, तो अध्यापिका बच्चों को लिख करके ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में समझा रही हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो इस भाषा को क्या कहा गया है यहाँ पर? लिखित भाषा। इस प्रकार हम आपको कक्षा में समझाते हैं लिख करके किसी चीज़ को, उसको भी हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक बच्चा जो है अपने पिता से बात कर रहा है, लेकिन किस में बात कर रहा है? कंप्यूटर के द्वारा।
तो उसको हमने क्या कहा, एक प्रकार से तो लिखित भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो टाइप करता है किसी चीज़ को तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। बट अगर लेकिन यहाँ पर स्क्रीन ना दिखाई जाए और वो खाली मौखिक के द्वारा अपने पिता से बात कर रहा हो तो मौखिक भाषा कहलाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर टाइप करके लिख रहा है तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। ठीक, आगे देखेंगे, दो फ्रेंड हैं या दो स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम इनको, तो वो आपस में भाई बहन की तरह बातें कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है भाई आज हम कहाँ जाएंगे, तो वो दोनों भाई बहन हैं। क्या हैं, भाई बहन। तो वो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया आज हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो उन्होंने अपनी मन की बातों को एक दूसरे को समझाना चाहे और बताना चाहे कि आज हम कहाँ जाएंगे। जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं कि पापा जी आज हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, आज हम सुबह स्कूल जाएंगे या तो पढ़ने के लिए। तो वो भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जिस प्रकार आपको इस पेज में समझाया है उसी प्रकार हम आपको अगले पेज की रीडिंग कराएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे। तो देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो जिस प्रकार हमने समझाया कि जैसे हमें अपनी बात को किसी तक पहुँचानी है या किसी को अपनी बात को बताना है तो उसे हम कैसे बोलते हैं, बोल करके समझाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नेता है और ये जनसंख्या मतलब लोग खड़े हुए हैं, वह अपनी बात को माइक के थ्रू सभी तक पहुंचा रहा है। तो कौन सी भाषा का यूज़ कर रहा है, मौखिक भाषा का यूज़ कर रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर, भाइयों और बहनों हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। जिस प्रकार आजकल के सभी नेता लोग भाषण देते हैं ना, उसी प्रकार ये भी सभी बोल रहे हैं कि हम आपकी बात को, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। मतलब अपनी बात को वो इन सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सी भाषा, मौखिक भाषा का। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। मतलब जनसंख्या वाले लोग जो हैं या लोग जिसको कह सकते हैं, वह अपनी बात नेता से बोलते हैं, नेता अपनी बात यहाँ बोलते हैं। जिस प्रकार हम अपनी कक्षा में हम आपको बताते हैं और आप हमसे पूछते हैं जो भी पूछना होता है, तो उसको हम भाषा कहते हैं। अपनी बातों को एक दूसरे को बताना समझाना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, समझिए, नेताजी ने बोलकर लोगों तक अपनी विचार पहुंचाए। तो हम भी आपको अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो से। तो आप भी हमारी बात को समझने की कोशिश करिए कि इसको ही हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे की लाइन में लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो इसी को हिंदी में कहा गया है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा 2 प्रकार की होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे हमारी भाषाएं जो होती हैं ना 3 प्रकार की भी हो सकती हैं। तो अभी हम उनके भी नाम बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो लिखी हुई हैं उसको ही पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाषा कितनी प्रकार की बताई गई है, भाषा 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली भाषा आपकी दी हुई है मौखिक भाषा। जैसे हमने पीछे के चित्रों में आपको बताया था ना कि चित्र में जो बोल करके बता रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह क्या कहलाती है, मौखिक भाषा होती है। जो भी हम अपने मुख से बोलते हैं या दूसरों को बताते हैं वो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ भाषा, ओरल का अर्थ मौखिक। तो उसी को हमने यहाँ पर कह दिया गया मौखिक भाषा। ठीक इसी प्रकार हम नीचे की लाइन में देखेंगे बच्चा, लिखित भाषा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटन लैंग्वेज। रिटन का अर्थ है लिख कर और लैंग्वेज का अर्थ तो हमने आपको पहले बताया ही है, भाषा। तो उसको मिला करके बोल दिया गया यहाँ पर लिखित भाषा। तो जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा होती है। वह क्या होती है, लिखित भाषा। जिस प्रकार हम आपको ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस पेज में सभी चीज़ें लिखी हुई हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, लिखित भाषा का। क्योंकि हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर कौन सी भाषा का यूज़ किया, लिखित भाषा का। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का अर्थ है जो हमारे यहाँ पर बोली जाए, में ज़्यादा अधिक मात्रा में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वही हमारी मातृभाषा होती है। तो हिंदी हमारी यहाँ की मातृभाषा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने भारतवर्ष में और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं अधिकतर तो वहाँ पर हिंदी का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये क्या है, मातृभाषा।
तो यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है, इसी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। किसको? हिंदी को। इसी प्रकार हम अन्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमने आपको समझाया भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इतना तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतनी लाइन कि क्या हम कहना चाहते हैं और आपको क्या समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार हम अपनी बात को आपसे बोलकर इस वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मम्मी अपनी बात को समझाती हैं, पिताजी समझाते हैं, टीचर्स कक्षा में समझाते हैं, वो क्या होती है? भाषा कहलाती है। और उसको हम बोलकर लिखकर समझाते हैं, वो सभी क्या होती हैं? भाषा कहलाती है। लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, सभी क्या होती हैं? भाषा कहते हैं उसको। आगे देखेंगे, जिस प्रकार यहाँ चित्र में हमने आपको दिखाया कि एक नेताजी हैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो नेताजी अपनी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। तो नेताजी क्या कह रहे हैं? नेताजी ने बोलकर लोगों तक अपने विचार पहुँचाए। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की यहाँ पर लिखी हुई है? 2 प्रकार की। लेकिन हमने अभी आपको पहले भी बताया कि भाषा 3 प्रकार की भी होती है, लेकिन सामान्यतः भाषा 2 ही प्रकार की ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं भाषा 2 प्रकार की होती है। तो तीसरी भाषा के बारे में अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी हम पहले आपको यहाँ पर 2 ही भाषा का प्रयोग बता रहे हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा। पहली भाषा है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो होती है, जो हम जैसे टीवी में सुनते हैं, समाचार जिसको कहा जाए न्यूज़ इंग्लिश में, तो वो कौन सी भाषा होती है? जो हम सुनते हैं, मौखिक भाषा। मोबाइल पर गाने सुनते हैं, वो भी मौखिक भाषा होती है। टीचर हमको जो चीज़ बताते हैं उसको हम ध्यान से कक्षा में सुनते हैं, वह भी मौखिक भाषा होती है। तो जो भी भाषा मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है, वह क्या कहलाता है? मौखिक भाषा होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा होती है। इसी प्रकार लिखित भाषा। तो दूसरी भाषा हमारी कौन सी है बच्चों? लिखित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा होती है। जैसे कि इस पेज में सभी चीज़ें, इस पार्ट में सभी चीज़ें लिख करके आपको बताई गई, तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। और हम आपको ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में भी लिख करके पार्ट का नाम बताते हैं, डेट बताते हैं, भाषाओं के प्रकार भी लिख करके समझाते हैं। तो सब कौन सी भाषा हो जाती है? वहाँ पर लिखित भाषा हो जाती है। और एक लाइन और आगे देखेंगे बच्चों, आगे पढ़ेंगे। हम हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है जो भाषा का हम ज़्यादा प्रयोग करें, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसको हम मातृभाषा कहते हैं। आगे देखेंगे, इसी में इस भाषा को, यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। क्या है? हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा भी है, जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा कह दिया गया। आगे देखते हैं, इसी प्रकार हम अन्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। तो हम अंग्रेजी का भी यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। अपने स्कूल में तो अधिकतर मात्रा में इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए, तो वह भी एक भाषा होती है। तो देखिए, अभी हमने एक आपको छोड़ दिया था यहाँ पर, तीसरी भाषा का नाम, वह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप भी ज़रा याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। तो वो भाषा हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर ज़रा आप सोचिएगा, तो आप सोच नहीं पा रहे ना, हम आपको बताते हैं। जो हम ट्रैफिक लाइट में देखते हैं ना, जैसे लाइट जलती है ग्रीन, येलो एंड रेड, तो वो हमारे लिए कौन सी भाषा का यूज़ होता है? सांकेतिक भाषा का। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है तो सीटी बजा करके इशारा करता है कि गाड़ी दाएं ले जाओ या बाएं ले जाओ, सीधे लेकर जाओ, पीछे लेकर जाओ, तो ये कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। और रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा होगा, जब सिग्नल गिर जाता है तो उसको भी सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये हमारी सांकेतिक भाषा होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, संसार में बहुत से देश हैं, उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जो भी हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा। जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी आदि। आदि का अर्थ है और भी बहुत सारी। हमारे देश में हिंदी भाषा के अतिरिक्त का अर्थ अलावा, मतलब इसके अलावा दूसरी भाषा भी अनेक भाषाएं
बोली जाती हैं। देश में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का अर्थ यहाँ पर जो भी भाषा दी गई हैं उनको बताया गया है कि ये सभी निम्नलिखित, मतलब बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है पहले हेडिंग में आपका भाषा का नाम। जो भी हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं उनके सभी ये नाम दिए हुए हैं, और जहाँ जहाँ बोली जाती हैं उसको कहते हैं राज्य। तो उन राज्यों के नाम भी देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। और आप भी इसी प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर चार्ट बना हुआ है ना, ये पूरा ऐसे ये बना हुआ है इस प्रकार से, तो आप अपनी पुरानी कॉपियों में इसको लिखने का प्रयास करिएगा। और अभी हम आपको आगे भी बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो चलिए अभी हम इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है हिंदी। हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि कई राज्यों में बोली जाती है। ठीक, आगे देखते हैं पंजाबी। पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है। गुजराती भाषा, आप बताइए ज़रा, गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। आगे देखेंगे मराठी। मराठी भाषा कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोली जाती है। अगला है बंगला। तो बंगला भाषा कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। अगली भाषा आपकी है तमिल। कौन सी भाषा? तमिल। तो तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। और फिर लास्ट में जो यहाँ पर दिया हुआ है तेलुगु। तो तेलुगु भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है या बोली जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये जो सारणी दी हुई है ना, अभी हम आपको इसको लिख कर बताते हैं कि इसको कैसे लिखना है, और आप भी उसको लिखिएगा ज़रूर और याद भी करिएगा जिस प्रकार हम आपको समझाएं। और यह कार्य कहाँ करना है आपको? इसको आपको अपनी पुरानी कॉपी में ही लिखना है, जो आपकी आप पहली कक्षा में यूज़ करते थे ना, हिंदी व्याकरण की कॉपी, उसी कॉपी में लिखना है। तो आगे देखते हैं हम आपको कैसे लिख कर बताते हैं, उसी प्रकार आप भी लिखेंगे। तो बच्चों देखिएगा, जैसे हमने आपको पहले बताया आपको कि हम इसको लिखकर बताएंगे, तो हम आपको यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। आप भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखिए और उसको याद करिए। हो सके तो लिखने के बाद अगर आप उसको दूसरे पेज में लिख करके कहीं पेस्ट करके उसको दिन में याद करने की कोशिश करें तो और भी जल्दी याद कर सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ डाला है पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो आप भी इसी प्रकार लिखिए ज़रा, फिर हम आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं, या आप हमारे साथ साथ लिखते जाइए। ज़रा अपनी पुरानी कॉपी और पेंसिल लेकर आइए और लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने जिस प्रकार यहाँ पर आपको लिख कर समझाया है भाषा का नाम और राज्य, इसी प्रकार आप भी 2 कॉलम बनाएंगे कॉपी में। एक में लिखेंगे भाषा का नाम और दूसरी तरफ लिख देंगे राज्य। तो जहाँ भाषा का नाम लिखा है उसके नीचे हम अपनी भाषा का नाम लिख देंगे, हिंदी भाषा, और जिन राज्यों में बोली जाती है उन राज्यों के नाम लिख देंगे सभी, जिस प्रकार हमने यहाँ आपको लिख कर बताया। तो इसी प्रकार हम यहाँ आगे भी लिखेंगे, वह भी देखिएगा कि हम कैसे लिखते हैं। आगे देखिए बच्चों, लिखा है हमने पंजाबी। तो पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है। दूसरी भाषा हमने लिखा है गुजराती, गुजरात में बोली जाती है। तीसरी हमने लिखा है मराठी, महाराष्ट्र में बोली जाती है। फिर चौथी हमने लिखा है यहाँ पर बंगला। तो बंगला भाषा को बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, और हमने लिखा है पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तो इसी प्रकार आप ये सब पूरा लिखिए। अभी हम आपको और आगे बताते हैं लिखकर, तो आप इसी को देख करके अभी लिखते जाइए, और इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके इनको लिखना ज़रूर है। और यही आपका होमवर्क है आज का। और ये हम जब आपके स्कूल खुलेंगे ना, तभी हम इसको देखेंगे। अभी हम आपको और आगे बताते हैं, वह भी लिखिए जब तक आप इनको लिख लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने आगे लिखा है तमिल। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। तो इसी प्रकार आप भी लिखते जाइए। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। तो ये पूरा चार्ट आपको अपनी पुरानी कॉपी में बनाना है और लिखना है। अगर आप इसको लिखते हैं और याद करते हैं तो आप इसको अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। हम अभी आपको यहाँ के आगे की भाषा जो है कल बताएंगे अगले आने वाली वीडियो में। इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। तो ज़रा इधर एक बार इस चैप्टर में पूरे में नज़र डाल लीजिए, एक बार और देखिए और पढ़ने की कोशिश करिएगा इसको। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे आप कार्टून देखना नहीं भूलते ना, कि इसी प्रकार आपको अपने हाथ धुलना नहीं भूलना चाहिए, और समय समय पर अपने हाथों को
सैनिटाइज़र से धुलते रहें, वॉश करते रहें जिसको कह सकते हैं। और ना हो अगर सैनिटाइज़र घर में तो डिटॉल सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफबॉय सोप का, किसी भी प्रकार की साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले तो विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों को हैंड वॉश करना है। और उसके साथ साथ टीवी कार्टून देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। जो भी हम आपको रोज़ की डेली पढ़ाते जाएंगे वह आपको डेली पढ़ना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है, जो हम स्कूल खुलने पर आपकी देखेंगे और उसको चेक करेंगे और सुनेंगे भी। तो ये आपका आज का पूरा होमवर्क है कि ये आपको करना है। तो कल फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जो हम आपको आगे का पार्ट पढ़ाएंगे या इसी पार्ट की आगे का अभी और भी पढ़ाएंगे। जैसे हम आपको दिखा दें एक बार कि हमने यहाँ पर आगे अभी और भी बहुत कुछ है इस पार्ट में, लिपि दिया हुआ है, तो हम इसको आपको कल समझाएंगे। अभी और भी देखिए यहाँ पर भाषाएं दी हुई है ना, तो ये भी हम आपको लिख कर समझाएंगे। ओके, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये सभी चीज़ें जैसे यहाँ पर व्याकरण दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, शुद्ध शब्द, ये सब हम आपको कब पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे आने वाले अगले वीडियो में। ओके, तो जो हमने कहा आपको वो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है कि अपने हाथों को समय समय पर धोते रखना है और अपने घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क अवश्य लगाना है और अपने से बड़ों की बातों को ज़रूर मानना है कि उनकी बात को मानेंगे ना तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे और मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हो गए कि हमारी बातों को मानते हैं। तो आप आगे भी वीडियो देखते जाइए इन सभी बातों के साथ साथ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिएगा जरा, आपका पार्ट था भाषा और व्याकरण, तो हमने इसको आपको दोबारा दिखा रहे हैं और आप इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप इसको अच्छे तरीके से कई बार रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो को प्ले कर करके। जिस प्रकार आप वीडियो गेम खेलते हैं ना बार बार प्ले करके कि कौन हारा कौन जीता, या टीवी कार्टून बार बार देखते हो, इसी प्रकार इसी वीडियो को भी आप अगर बार बार प्ले करके देखते हैं तो आप इसकी अच्छी रीडिंग पुनः कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमने आपको लिखकर समझाया वह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है और समझना है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने आपको समझाया है ना, इसी प्रकार आपको लिखना जरूर है और समझना है। ठीक, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड अपने फैमिली की भी रक्षा करिए और स्वयं की भी रक्षा करिए। Good morning class. Student, let's start explanation lesson 1. The name of the lesson is Food for Us. First take a screenshot. Yesterday I explained food, eatable things, need of foods. Why do we need food? We need food help us growth, energy to work and play. Food keep us healthy. Sources of food. What are the main sources of food? There are two type of food. First, plants. Second, animals. Plants, different type, vegetables, fruits, cereal, pulses, coffee, tea and sugar, oil, etc. Animals, food from animals. Animals give us different food, milk, honey, meat, eggs, etc. Now today we will start is line basic food groups. Okay class, first take a screenshot. Basic, underline the word basic. Basic means फाउंडेशन, किसी भी चीज़ की एक फाउंडेशन. फूड
ग्रुप्स, बेसिक फूड ग्रुप्स, जो फूड आइटम हम ईट करते हैं उसका हमें क्या देखना है, बेसिक फूड ग्रुप्स। हम 3 टाइप के फूड हमारे फूड्स में ऐड होने चाहिए। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकंड एनर्जी गिविंग फूड, थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तब हमारा जो ये है बेसिक फूड ग्रुप्स कंप्लीट होगा या बैलेंस डाइट हमारी कंप्लीट होगी। बेसिक फूड ग्रुप्स, द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट। अभी हमने बेसिक फूड ग्रुप्स की बात की थी ना, तो जब हमारे डाइट में ये तीनों ग्रुप होंगे, ये तीनों फूड प्रोडक्ट्स मिक्स होंगे, ऐड होंगे, तब हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होगी। देयर आर 3 main kinds of food groups that should be included in our diet. कितने ग्रुप्स हैं? 3 मेन ग्रुप्स हैं। जब हम उन्हें अपनी डाइट में ऐड करते हैं तब हमारी डाइट कंप्लीट डाइट होती है और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है। ठीक है, और फूड ग्रुप्स दैट शुड बी इंक्लूड इन आवर डाइट, और हमें ये तीनों फूड ग्रुप्स को, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों फूड आइटम हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। तब हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होती है और फिट होती है और विदाउट इल होती है। तब हमारी बॉडी हेल्दी होती है। ओके, फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग मीन्स the bodybuilding diet is designed to build muscles. ओके क्लास, जब हमारे डाइट में बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम इंक्लूड करते हैं, मीन्स प्रोटीन, हमारे फूड में प्रोटीन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, मसल्स बनते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटीन्स, अंडरलाइन द वर्ड प्रोटीन, मीन्स these food items are contains protein help us to grow, build muscles our body। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हम प्रोटीन फूड ईट करते हैं या अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम क्या करते हैं, डे बाय डे ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन, चेस्टनट्स, कैश्यू नट्स, मीट, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी मीन्स पावर। ओके क्लास, अंडरलाइन द वर्ड एनर्जी मीन्स पावर। एनर्जी गिविंग फूड्स और carbohydrate and fats give us energy to work and be active. These foods include energy giving foods. Energy means power. Those food items that give us energy. Why we need energy? We need energy for various activities
like playing and other activities. Protective foods. Protective means, underline the word protective. Protective means protects the person from harm. Okay, जो प्रोटेक्टिव फूड और विटामिन्स एंड मिनरल्स अंडरलाइन द वर्ड हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम illness. These food include, protective means जो बॉडी के हेल्थ और ग्रो को सुरक्षित रखते हैं, वो फूड आइटम्स प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स ऐड होते हैं. विटामिन्स हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारा शरीर बॉडी कैसी हो, हेल्दी हो और डे बाय डे ग्रो करे. इसलिए विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कैसे इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स है. एंड मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. ओके क्लास. और खनिज पदार्थ, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इलनेस से, ठीक है, और जर्म्स से. help us to be strong. Strong means physically powerful. Healthy means स्वस्थ. जब हम कैसे फूड प्रोडक्ट ईट करते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स, जिसमें क्या ऐड होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स. विटामिन्स हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके क्लास, और मिनरल्स मिल्क एक्सेट्रा. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस. हमेशा हमें किससे सेव करते हैं? डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से. दीज फूड इंक्लूड, किस में इंक्लूड्स होते हैं इस टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क. बैलेंस्ड डाइट. अंडरलाइन द वर्ड बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस मीन्स संतुलित आहार. डाइट मीन्स the food that a person or animal usually eat. Diet means आहार या खुराक. ओके क्लास. A balanced diet has all the three groups of food. 3 groups. कौन से 3 groups? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. जब ये 3 ग्रुप्स हमारी डाइट में इक्वल क्वांटिटी में होंगे तब हमारा जो फूड है वो कैसा होगा? बैलेंस डाइट होगी, ठीक है. और हम उसे जब ईट करेंगे तो क्या होगा? कीप अस हेल्दी. ओके. और डिफरेंट नट्स, चपाती, मिल्क, वेजिटेबल्स, दाल, ओके क्लास, एंड fruits. Now start writing question answer. Yesterday I wrote question number 1 to 3. Question number 1, 2 and 3. Okay class, did you complete in your copy? Today
I am writing question number 4. Use your copy of class 1, okay, and write neat and clean question number 4. Question number 4. What finger space is finger space a finger space balanced finger space died question mark. Class, press your pencil, write dark. Next line, answer A and S. Okay? A balanced diet has all the 3 groups of food in the right amount to keep us healthy. Okay, repeat again. A balanced diet has all the 3 groups of food in the right amount to keep us healthy. Okay, class? Let's start completing exercise and solving. Exercise A. Take the correct answer. Okay, class? First, take a screenshot. Put your finger on your screenshot. Number 1. We eat food when we are hungry. When do we need food? क्लास, हमें कब फूड की नीड होती है? जब हम क्या होते हैं? हंग्री होते हैं. ओके, टेक द आंसर बी, हंग्री. Number 2. The 2 sources of food are. Okay, class? Plants and animals. Answer A. Tick. Number 3. We get milk and meat from. Who give us milk and meat? Animal. Right answer is animal. Option B. Tick out. 4. We get fruits and vegetables from. Option A. Plants. Tick out. कौन से प्लांट्स हैं जो हमें कौन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देता है? प्लांट्स. ओके, क्लास? Number 5. Energy food helps us to. Why do we need energy? क्लास, किस लिए हमें एनर्जी की नीड होती है? यस, वर्क के लिए, प्लेइंग के लिए. ऑप्शन बी, टिक आउट. आफ्टर दिस वर्क, go to the washroom and wash your hand. Be ready for next class. Student, let's start completing exercise and solving. Write down
these exercise in your rough notebook. Use your previous copy of class 1. Okay, class? First, take a screenshot. Exercise B. Fill in the blanks with the correct word from the help box. Okay, class? Exercise. Okay, number 1. Food gives us blank place. 2. Work and play. What does food give us? What does food give us? जल्दी बताइए. Energy. Energy. Food give us energy. Energy to work and play. Okay, class? Energy. E N E R G Y. Energy. Food give us energy. Food क्या देता है हमें? Energy देता है. Energy to work and play. Number 2. Wheat is a blank place. What is wheat? Wheat क्या है? Yes. Cereal. C E R E A L. Cereal. Cross the word. Cereal. Number 3. Kidney beans is a blank place. The meaning of kidney beans is rajma. What is a kidney beans? Pulses. P-U-L-S-E. Pulses. Kidney beans is a pulses. Number 4. The food we eat is called our blank place. क्लास, जो खाना हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आहार, डाइट. खुराक है ना, डाइट. D-I-E-T. Diet. The food we eat is called our diet. Press your pencil, class. Write neatly. Honey is made from blank place. Honey is
made from nectars. What is the meaning of nectars? The sweet liquid that bees collect from flowers to make. Okay? Repeat again, fill in the blanks. Number 1, food gives us energy to work and play. Number 2, wheat is a cereal. Kidney beans is a pulses. Number 4, the food we eat is called our diet. Number 5, honey is made from nectars. Okay class, complete this exercise. Be very good. Next exercise, C. Write true or false. True means right, false means wrong. For the following statements. Okay? Number 1, we need food to grow. We need food टू ग्रो. जब हम क्या करते हैं, फूड ईटिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी डे बाय डे क्या करती है, ग्रो करती है ना क्लास. राइट डाउन ट्रू. प्रेस योर पेंसिल एंड राइट डार्क. ओके. Number 2, we get salt from plants. We get salt from ocean. Okay class, जो salt है, salt means नमक. जो नमक है वो हमें कहाँ से मिलता है, ओशन से. ओके. We get salt from plant. This sentence is wrong. Plant give us vegetables, fruit, cereals, etc. Okay? This sentence is wrong, false. We get salt from plants. Wrong, false. 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 Number 3. Cheese is prepared from coconut oil. Cheese is prepared from milk, not coconut. Coconut prepared from burfi. Okay. Cheese